اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مسلمہ قذاب کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کروا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے رجال کو بلایا، بولا کیا تم نے سنا ہے کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے رجال؟ لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم ان پر حملہ کر دیں؟ رجال نے کہا اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ مسلمہ نے کہا پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجا نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ مسلمہ کے ایک درباری نے اسے کہا اے رسول، سنا ہے سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ایک اور نے کہا اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مسلمہ نے پوچھا کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ اسے جواب ملا نہیں اللہ کے رسول، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے قہقہ لگایا اور کہا تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی لیکن جائے گی نہیں اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ سجا آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی تھیں۔ اتنی خوبصورت اور طرحدار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ سجا نے بلند آواز سے کہا کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی معزز مہمان تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائیں۔ سجا نے دلیری سے کہا دروازہ کھول دو اور اپنے محافظوں سے کہا تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ۔ محافظ دستے کے سردار نے کہا لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ سجا نے کہا اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کے یہیں دفن کرنا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا۔ سجا نے اس سے طنزیہ لہجے میں پوچھا کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے، انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے کے بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ٹھگنا سا یہ بدصورت آدمی پراسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔
सजा ने कहा, अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। मुसलमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे शेर पढ़ रहा हो। बोला, तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई थी? तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी उस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं। मुझे खुदा ने बताया है। उसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले। वो एक जिंदा वजूद से जिंदा वजूद पैदा करता है, पेट से, अंतड़ियों से। खुदा ने मुझे बताया है कि औरत मानिंद ज़र्फ के है जिसमें कुछ डालकर निकाला जाता है, वरना ज़र्फ बेकार है। सजा मशहूर होती चली गई। मुसलमा शायरों के लबो लहजे में बातें करता रहा। सजा ने महसूस ही न किया कि मुसलमा उसके जज्बात को मुश्तइल कर रहा है, और वो भी महसूस न कर सकी कि सूरज गुरूब हो चुका है। मुसलमा ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम आज रात यहीं रहना चाहो। अगर चेहरे देखने हैं तो तुम दिन हो, मैं रात हूँ। मगर तुमने इस पर गौर नहीं किया होगा कि दिन पर रात क्यों गालिब आ जाती है, और दिन अपना सूरज रात की तारीख गोद में क्यों डाल देता है। ये हर रोज होता है, इसका वक्त मुकर्रर है। रात सूरज की चमक दमक को खा नहीं जाती, बड़े प्यार से उसे जगा कर दूसरे उफक पर रख देती है। सजा ने कहा, हाँ मुसलमा, मेरा जी चाहता है कि मैं मान लूं कि तुम सच्चे नबी हो। इतना बदसूरत आदमी इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता। कोई गैबी ताकत है जो तुमसे इतनी अच्छी बातें करवा रही है। वो चौंक पड़ी और बोली, सूरज गुरूब हो गया है। अगर मैंने किले की दीवार पर खड़े होकर अपने मुहाफिजों को ये न बताया कि मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी बस्तियों की गलियों में खून बहने लगेगा। मुसलमा ने उसे अपने 2 मुहाफिजों के साथ किले की दीवार पर भेज दिया और खेमे में रखा हुआ आतिशदान जलाने का हुक्म दिया। फानूस भी रोशन हो गए। मुसलमा ने आतिशदान में छोटी सी कोई चीज रख दी। कमरे में खुशबू फैलने लगी। सजा वापस खेमे में आई तो उस पर खुमार सा तारी होने लगा। वो आम सी औरतों की तरह रुमान अंगेज बातें करने लगी। मुसलमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम मियाँ बीवी बन जाएं? सजा ने मखमूर सी आवाज में जवाब दिया, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। सुबह तुलू हुई तो सजा इस अंदाज से बाहर निकली जैसे दुल्हन अपने पसंद के दुल्हा के साथ इस दवाजी जिंदगी की रात गुजार कर निकली हो। कले में शादियाने बजने लगे। सजा के लश्कर तक ये खबर पहुंची कि सजा ने मुसलमा के साथ शादी कर ली है। ये शादी इस्लाम के लिए बड़ा खतरा बन गई। इर्तिदाद के 2 लश्कर मुत्तहिद हो गए, लेकिन ये इत्तेहाद जल्दी बिखर गया क्योंकि मुसलमा ने सजा को धोखा दिया और वो दिल बर्दाश्ता होकर इराक अपने कबीले चली गई। मुसलमा ने अपने लिए एक बहुत बड़े खतरे को खत्म कर दिया था। सजा को इतना सदमा हुआ कि वो नबूवत के दावे से दस्तबरदार हो गई। बाद में वो मुसलमान हो गई और कूफा चली गई। उसने बड़ी लंबी उम्र पाई और मुत्तकी और पारसा मुसलमान की हैसियत से मशहूर रही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही हर तरफ बगावत और अहद शिकनी का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तूफान सहाबा के अपने यहाँ उठा। ये खलीफा अव्वल का इंतखाब था। अंसार और महाजरीन के दरमियान खिंचाव सा भी पैदा हो गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिर ये फैसला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु पर छोड़ा और कहा कि ये दोनों जिसे पसंद करें उसे सब खलीफा मान लें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप महाजरीन में सबसे अफजल हैं। गार में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और नमाज पढ़ाने में उनके कायम मकाम रहे हैं। दीन के अहकाम में नमाज सबसे अफजल है। हमें ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता जो आपसे बरतर हो। बेशक आप खिलाफत के हकदार हैं। सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। उसके बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और बशीर बिन साद ने बैत की। जब ऐलान आम हुआ कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रसूल होंगे तो लोग बैत करने के लिए दौड़े आए। मस्जिद नबवी में बैत आम हुई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला खुतबा खिलाफत दिया। कहा, लोगों, खुदा की कसम, मैंने खिलाफत की ख्वाहिश कभी नहीं की थी, न कभी दिल में न कभी ज़ाहिरी तौर पर इसके लिए अल्लाह से दुआ की थी, लेकिन इस डर से ये बोझ अपने नातवां कंधों पर उठा लिया कि इख्तिलाफ झगड़े की सूरत इख्तियार न कर जाए, वरना खिलाफत और इमारत में मुझे कोई राहत नजर नहीं आती। एक बोझ मुझ पर डाल दिया गया है जिसे उठाने की ताकत मुझ में कम है। अल्लाह की मदद के बगैर मैं इस बोझ को उठा नहीं सकूंगा। मुझे तुमने अपना अमीर बनाया है। मैं तुमसे बेहतर और बरतर तो न था। अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो मेरी मदद करो, कोई गलती करूं तो मुझे रोक दो। तुम में से जो कमजोर है मैं उसे ताकतवर समझता हूँ। मैं उसे उसका हक दिलवाऊंगा। तुम में से जो ताकतवर है उसे मैं कमजोर समझूंगा और उसे उस हक से महरूम कर दूंगा जिसका वो हकदार नहीं। मैं जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तुम मेरी इताअत करो। अगर मैं इन्हिराफ करूं तो मेरी इताअत छोड़ देना। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहला हुक्म ये देकर कि उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर रूमियों के खिलाफ जाएगा, सबको चौंका दिया। ये मौका किसी और जंगी मुहिम के लिए मौजू न था। रूमियों पर हमला बहुत बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों की पूरी जंगी ताकत की जरूरत थी।
लेकिन दूसरी सूरत ये पैदा हो गई थी कि बेशतर कबीलों ने न सिर्फ बगावत कर दी थी बल्कि बाज ने मदीना पर हमले के लिए मुत्तहिद होना शुरू कर दिया। यहूदी और नसरानी खास तौर पर मदीना के खिलाफ सरगर्म हो गए थे। इसके अलावा झूठे पैगंबरों ने अलग महाज बना लिए। तुलहा और खुसूसन मुसलमा तो जंगी ताकत बन गए थे। इस्लाम बड़े खतरे में था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म के पस मंजर ये था कि तबूक और माता के मार्कों के बाद रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूरी समझा था कि रूमियों पर हमला करके उनका दमखम तोड़ा जाए। तबूक और माता के मार्कों में तो ये कामयाबी हासिल की गई थी कि उन कबीलों को मुती कर लिया गया था जिनका खतरा था कि वो रूमियों के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। उन रूमियों को खत्म करना जरूरी था। ये फैसला मुल्क गिरी की खातिर नहीं बल्कि नजरियाती दिफा के लिए किया गया था। यहूदी और नसरानी इस्लाम के खिलाफ रूमियों के कैंप में चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों पर हमले के लिए एक लश्कर तैयार किया जिसमें महाजरीन और अंसार के सरकर्दा अफराद शामिल थे। इस लश्कर के सालार जैद बिन हारिसा के बेटे उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उनकी उम्र बमुश्किल 20 साल थी। मौरखों ने लिखा है कि उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सिपाह सालार मुकर्रर किया था कि नौजवानों में क़यादत का शौक पैदा हो और वो अपने आप में उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करें। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत चाहते थे। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जंग मौता में शहीद हो गए। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु में लड़कपन में ही अस्करी सलाहियतें और शजाअत पैदा हो गई। जंग ओहद के वक्त उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चे थे, इसलिए उस जंग में शरीक न हो सके। लेकिन इस्लामी लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु रस्ते में कहीं छुप कर बैठ गए। जब लश्कर उनके करीब से गुजरा तो वो लश्कर में शामिल हो गए। उनकी मुराद फिर भी पूरी न हुई। उन्हें मैदान जंग में देख लिया गया और वापस भेज दिया गया। अलबत्ता जंग हुनैन में उन्होंने सबको दिखा दिया कि शजाअत क्या होती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को रूमियों पर हमला करने वाले लश्कर की सिपाह सालारी सौंपी तो बाज लोगों ने एतराज किया था कि जिस लश्कर में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे आला हैसियत और तजुर्बे के बुजुर्ग शामिल हैं, उस लश्कर की सिपाह सालारी कल के बच्चे को देना मुनासिब नहीं। ये एतराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस वक्त पहुंचा जब आप अलैहिस्सलाम जिंदगी के आखिरी बुखार में मुब्तला थे। आप अलैहिस्सलाम में बोलने की भी सकत नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम ने बुखार से निजात पाने के लिए अपनी अज़वाज से कहा कि आपको गुस्ल करवाएं। आप अलैहिस्सलाम पर 7 मिशकीज़े पानी के डाले गए, उससे बुखार खासा कम हो गया, नकाहत ज्यादा थी। फिर भी आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में चले गए जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें एतराज करने वाले सरकर्दा अफराद भी थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, उसामा के लश्कर को कूच करने दो। तुमने इसकी सिपाह सालारी पर एतराज किया है, तुमने इसके बाप की सिपाह सालारी पर भी एतराज किया था। मैं उसामा को इस मनसब के काबिल समझता हूँ, इसके बाप को भी मैंने इस मनसब के काबिल समझा था और तुमने देखा कि मैंने सिपाह सालारी उसे सौंप कर गलती नहीं की थी। एतराज खत्म हो गया और रूमियों के खिलाफ लश्कर कूच कर गया। लेकिन जुर्फ के मकाम पर इत्तला मिली कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई है। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु में नौजवानी में ही बुजुर्गों जैसी दूरंदेशी पैदा हो गई थी। उन्होंने लश्कर को जुर्फ के मकाम पर रोक लिया और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने मदीने आए। एक तहरीर में उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान इन अल्फाज में मिलता है, इत्तला मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बिगड़ गई है तो मैं अपने चंद एक साथियों के साथ मदीने आया। हम सीधे रसूलुल्लाह के हुजूर गए। आप अलैहिस्सलाम पर नकाहत तारी थी, इतनी के बोल भी न सके। आप अलैहिस्सलाम ने 2-3 बार हाथ उठाकर आसमान की तरफ किए और हर बार हाथ मेरे ऊपर रख दिए। मैं समझ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरे रोज उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु फिर आप अलैहिस्सलाम के हुजूर गए और कहा, या रसूलल्लाह, लश्कर जुर्फ में मेरा मुंतजर है, इजाजत फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ ऊपर उठाए मगर हाथ ज्यादा ऊपर न उठ सके, ज़ोफ बहुत ज्यादा था। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु दिल पर गम का बोझ, आंखों में आंसू लेकर रवाना हो गए। थोड़ी ही देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। कासिद उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे दौड़ा और रास्ते में जा लिया। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनी। घोड़ा सरपट दौड़ाया, अपने लश्कर तक पहुंचे। विसाल की खबर ने लश्कर में कोहराम बर्पा कर दिया। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर को मदीने ले आए। खलीफा अव्वल की बैत हो चुकी थी। उन्होंने उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या हुक्म दिया था। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ये हुक्म तो आपको भी मालूम है, मुझे इसे सुनना है तो सुन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मैं फलस्तीन में बल्का और दवाम की सरहद से आगे जाकर रूमियों पर हमला करूं।
लेकिन वहां तक लश्कर इस तरह पहुंचे कि दुश्मन को हमले तक लश्कर की आमद की खबर न हो सके। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जाओ उसामा, अपना लश्कर ले जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करो। लश्कर को जब ये हुक्म मिला तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु पर एतराज होने लगे। सब कहते थे कि जब हर तरफ से खतरों के तूफान ने घेर लिया है, इतनी बड़ी जंग और वो भी इतनी दूर शुरू नहीं करनी चाहिए। इस लश्कर की उन फितनों की सरकूबी के लिए जरूरत है जो बड़ी तेजी से उठ रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, कसम उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुझे जंगल के दरिंदे चीरने फाड़ने के लिए आ जाएं तो भी मैं उसामा के लश्कर को नहीं रोकूंगा। मैं उस हुक्म की खिलाफ वर्जी किस तरह कर सकता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिया था। मैं अगर मदीने में अकेला रह गया तो भी उस लश्कर को नहीं रोकूंगा। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम पर सलामती हो अबू बकर। एतराज करने वाले ये भी कहते हैं कि अगर लश्कर को भेजना ही है तो सिपाह सालारी उसामा की बजाय किसी तजर्बाकार आदमी को दें। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, ए इब्ने खत्ताब, क्या तुम भूल गए हो कि उसामा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाह सालार मुकर्रर किया था? क्या तुम जुर्रत करोगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मनसूख कर दूं? उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरी सुन इब्ने खत्ताब, अपनी कौम को देख, पूरी कौम गम से निढाल है। गम के साथ साथ एक खौफ है जो हर किसी के दिल में उतरता जा रहा है। ये खौफ उन बगावतों का है जो हमारे इर्द गिर्द उठ रही हैं। हर रोज एक खबर आती है कि आज फलां कबीला बागी हो गया है, बाज कबीले इस्लाम से मुनहरिफ हो गए हैं, इस्लाम भी खतरे में आ गया है और मदीना भी। यहूदियों और नसरानियों ने बड़ी खौफनाक अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं। इनसे और ज्यादा खौफ फैल रहा है। अगर हमने रूमियों पर हमला रोक लिया तो दो नुकसान होंगे। एक ये कि कौम समझेगी कि हम कमजोर हो गए हैं, दूसरी ये कि रूमी और मजूसी हमको कमजोर समझकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं हो गए, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मैं कौम के हौसले और जज्बे पहले की तरह मजबूत रखना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना मेरा फर्ज है। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस इस्तदलाल ने मुतमईन कर दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु का लश्कर रवाना हुआ तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कुछ दूर तक पैदल ही चल पड़े। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार थे। मौरखीन ने लिखा है कि एक सिपाह सालार और वो भी नौजवान घोड़े पर सवार था और खलीफा उसके साथ साथ पैदल चल रहा था। इसकी वजह यह थी कि खलीफा हर किसी को दिखाना चाहते थे कि सिपाह सालार उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ताज़ीम और तकरीम के काबिल है। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए खलीफा रसूल, आप घोड़े पर सवार हो जाएं या मैं आपके साथ पैदल चलूं? अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, न मैं सवार हूंगा और न तुम पैदल चलोगे। मैं रूहानी तस्कीन महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह की राह की गर्द मेरे पांव पर भी पड़ रही है। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उस लश्कर में शामिल थे। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को महसूस हुआ कि मदीने में उन्हें उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की जरूरत होगी। खलीफा ने सिपाह सालार से कहा, उसामा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीने में रख लूं, मुझे उसकी मदद की जरूरत होगी। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को लश्कर में से निकल कर वापस जाने की इजाजत दी थी। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत बूढ़े थे, एक जगह रुक गए। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लश्कर को रोक लिया। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जरा बुलंद जगह पर खड़े होकर लश्कर से खिताब किया, इस्लाम के मुजाहिदों, मैं तुम्हें 10 नसीहतें करता हूँ, इन्हें याद रखना। खयानत न करना, चोरी न करना, दुश्मन के लाशों के आज़ा न काटना, बच्चों और औरतों को कत्ल न करना, खजूरों और फलों के दरख्त न काटना, खाने की गरज के सिवा किसी जानवर को ज़िबाह न करना। तुम्हें दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहें नजर आएंगी जिनमें तारकुद दुनिया लोग बैठे होंगे, उन्हें परेशान न करना। किसी बस्ती के लोग बर्तनों में तुम्हारे लिए खाना लाएंगे, ये खाना अल्लाह का नाम लेकर खाना। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपने सरों में शैतान के घोंसले बना रखे हैं। उनके सरों के दरमियान का हिस्सा मुंडा हुआ होगा और बाकी बाल बहुत लंबे लंबे होंगे। उन्हें कत्ल कर देना और अपनी हिफाजत अल्लाह के नाम से करना। खुदा हाफिज मुजाहिदों। लश्कर की मदीने से रवानगी की तारीख 24 जून 632 ईस्वी यकम रबीउल सानी 11 हिजरी थी। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु के लश्कर ने रूमियों के खिलाफ सिर्फ 40 दिनों में वो कामयाबी हासिल कर ली जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करना चाहते थे। उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु सालारी के हर पहलू पर पूरे उतरे और जब वो फतह याब होकर मदीने में आए तो उन सब ने उन्हें गले लगाया जिन्होंने उनकी सिपाह सालारी पर एतराज किए थे। दूसरी बड़ी जंग मुर्तदीन के खिलाफ थी। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को कई हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्से के सालार मुकर्रर किए और उनके लिए महाज मुकर्रर किए।
यानी हर सालार को एक एक इलाका बता दिया गया जहां उन्हें हमला करना था। इस तकसीम में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास तौर पर ये ख्याल रखा था कि हर दुश्मन की ताकत और लड़ने वाली नफरी देखकर उसके मुताबिक सालार मुकर्रर किए जाएं। सबसे ज्यादा ताकतवर और मक्कार दो मुर्तद थे, एक तुलैहा और दूसरा मुसलमा। उन दोनों ने नबूवत का दावा करके हजारों पैरोकार पैदा कर लिए थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि वो तुलैहा की बस्तियों पर हमला करें और उससे फारिग होकर बताह का रुख करें, जहां बनी तमीम के सरदार मालिक बिन नवैरा ने बगावत कर